पेश है गुड मॉर्निंग J&K। پرانین کتھن سنان بازے سین منز نار کول انان بازے خواب سی منز چھُ دُہ وتھان خوابن بدگمانی چھ تِژھ گنان بازے یُتھ نہٕ منز مارکس کُنیر ماریم ٲنہٕ چھُس برونٛہہ کُن انان بازے۔ السلام علیکم، صبح خیر، آداب، وَژھِ وٲنجہِ خوش آوے تُہنٛدِس من پسند پروگرام گُڈ مارننگ J&K یس اندر أسۍ چھِ تۄہہِ تام واتان ہر دۄہ ہر صبح 8 بجہِ پٮ۪ٹھے 9 بجن تام دوٗردرشن چہِ ییٚمہِ کٲشِر چنلہِ پٮ۪ٹھ۔ یتھ اندر میزبٲنی ہُنٛد شرف چھُنہٕ اَسے یوت حٲصِل سپدان کینٛہہ بلکہِ میزبٲنی ہٕنٛدۍ فرٲیض چھِ تُہۍ تہِ انجام دِوان۔ تُہۍ ٲسِو سونٛچان کہِ کِتھ پٲٹھۍ؟ ناظریٖن محترم، ییٚلہِ أسۍ دستک دِوان چھِ، ییٚلہِ تُہۍ ٹھُک بوزان چھِ، تیٚلی چھِو تُہۍ دروازٕ یلہٕ ترٛاوان تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ دروازٕ یلہٕ چھِ ترٛاوان سۄے چھِ سانہِ باپتھ اکھ وتھ بنان تُہنٛدِس گرس اندر واتنس، تُہنٛدٮ۪ن ٹی وی سکریٖنن تام واتنس تہٕ تُہنٛدٮ۪ن دلن تام واتنس، تُہنٛدٮ۪ن دلن منٛز لۄکٕٹ مۄکٕٹ جاے بناونٕچ کوٗشش کران تہٕ دلن اندر جاے بناوٕنۍ یہِ چھنہٕ سہل کتھا کینٛہہ، یہِ چھنہٕ معموٗلی کتھ کینٛہہ، یہِ چھِ مسلسل کوٗشش، مسلسل دستک۔ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ اکھ انسان کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ باپتھ یِم دلٕکۍ دروازٕ یلہٕ تراوِ، انسانس پزِ کوٗشش کرٕنۍ کہِ اتھس کرِ قرار، أمِس شخصس واتناوِ نہٕ کانٛہہ آزار۔ فرماوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان چھُنہٕ چاہے زٲنِتھ مٲنِتھ یا أمِس آسہِ نہٕ زوٚن تتھ کُن کینٛہہ، کٲنٛسہِ ہُنٛد دل پھٕٹراوان چھُ، تمہِ پتہٕ أمِس چھُ باسان کہِ أمِس شخصس چھِ معٲفی منٛگٕنۍ سہل تہٕ آسان، پتہٕ یِہوے معاملہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمسٕے سۭتۍ پیش یِوان چھُ، تمہِ ساتہٕ چھِ أکِس انسانس فکرِ تران کہِ معاف کرُن یہِ کوتاہ مُشکل چھُ۔ تو مۄکھٕ اکھ کٲشُر شٲعر فرماوان کہِ دل چھُ ٲوِل شیٖشہِ یُتھ نہٕ پھٕٹراوہن، دل چھُ ٲوِل شیٖشہِ یُتھ نہٕ پھٕٹراوہن، یُتھ نہٕ سا دزوُن شمع ژھیوراوہن۔ او مۄکھٕ ناظریٖن محترم، اکھ أکۍ سٕنٛز کرو قدر، اکھ أکۍ سٕنٛدۍ دل رچھو، تِکیازِ کہِ یۄس زن یہِ عمل چھنہ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہس نزدیٖک واریاہ زیادٕ محبوٗب۔ پروگرامُک سلسل پکناوو برونٛہہ، یہِ چھِ آسان تِژھٕ کینٛہہ کتھٕ یِم زن أسۍ پروگرام کِس آغازس منٛز أسۍ تۄہہِ تام واتناوان چھِ پروگرامُک سلسل برونٛہہ پکناونہٕ خٲطرٕ۔ ناظریٖن محترم، أزکِس پروگرامس منٛز میزبٲنی ہٕنٛدۍ فرٲیض ٲسۍ انجام دِوان، بہٕ روزٕ تُہنٛز میزبان تۄہہِ سۭتۍ برابر 9 بجن تام اقرا آخُن تہٕ پروگرامس منٛز سٲتھی میزبان ماجد نندا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ ماجد؟ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت اچھی باتیں تھی، اور ایسا بھی کہتے ہیں کہ دل کی قیمت 2 میٹھے بول، اور یہ دنیا میں بڑا اچھا کام ہے کہ اگر آپ کے دل کسی کے دل کو راحت اور آرام اور خوشی پہنچاتے ہیں، اور ایک خوبصورت سی اسمائل۔ بالکل، ہاں وہ تو صحیح ہے۔ تو ناظرین، استقبال، صبح بخیر، ایک نئے جوش، ایک نئے ولولے اور ایک نئی امید کے ساتھ گڈ مارننگ J&K کا ایک نیا شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سب کو ہمارا پیار، خلوص اور محبت بھرا آداب، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ امید اور یہ دعا یہی کہ اس نئے دن کی نئی صبح آپ کی زندگی میں ایک نیا بہار لے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے دامن میں بہت ساری خوشیاں بھر دے، اور آج اس نئے دن کے حوالے سے جو آپ کے عزائم ہیں، جو آپ کی جائز خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کو پورا کرنے میں پوری مدد کرے اور آپ کو ہمت سے بھی نوازے، یہ ہماری دعا ہے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ
پروگرام کے آغاز میں ہم پر اور آپ کو بھی انتظار رہتا ہے اپڈیٹس کا اور ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں آپ تک اپڈیٹس پہنچانے کے لیے. آپ جب صبح اسٹوڈیو آ رہے تھے مجھے پتا ہے آپ موسم کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں, تو بارشیں ہو رہی تھی. ہاں موسم, اور یہی پیش گوئی بھی ہے کہ مطلب ابر آلود رہنے کی پیش گوئی ہے, محکمہ موسمیات سے یہی اطلاع ملی ہے اور موسم ٹھنڈا بھی ہو رہا ہے. رات بھر مسلسل بارشیں ہو رہی تھی اور صبح جب اسٹوڈیو کی اور آ رہے تھے تو ہلکی ہلکی بارشیں. ہاں اس سال گرمی بہت زیادہ پڑی تو لوگ بڑے مزے لے رہے ہیں اس ٹھنڈے موسم کا, راحت کی سانس لیتا ہے ایک انسان. تو آج جو محکمہ موسمیات سے ملی پیش گوئی ہے درجہ حرارت کے حوالے سے آپ کو بتا دیں جو مطلع ہے ابر آلود رہنے کی پیش گوئی ہے. البتہ جو میکسیمم ٹیمپریچر 23 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. وہیں جموں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی پھلکی بارشیں ہو سکتی ہیں. شاہراہ کی بات کریں, آج جو نیشنل ہائی وے 44 ہے یعنی ہماری جو سری نگر جموں نیشنل ہائی وے ہے اس پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. البتہ جو مال بردار گاڑیاں ہیں 12 بجے کے بعد ان کو سری نگر سے جموں چلنے کی اجازت دی گئی ہے. وہیں ہمارا تاریخی مغل روڈ اور SSG روڈ پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اور ہماری ہر بار آپ سے یہی استدعا ہوتی ہے, یہی گزارش ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے سفر کے لیے نکلیں, جب آپ رخت سفر باندھیں تو ٹریفک کنٹرول یونٹس پہ رابطہ ضرور قائم کریں. ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں ان پر جا کے بھی اپڈیٹس لے اور جو آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں ان پر بھی رابطہ قائم کرے, لیٹسٹ اپڈیٹس, کٹ آف ٹائمنگز. اور چونکہ موسم بھی آج خراب ہے تو کبھی بھی جو ہائی وے ہیں کبھی بھی پسیاں گرا سکتی ہے, تو وہ اپڈیٹس لے کر ہی سفر کے لیے روانہ ہو. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ کا سفر آسان بنے جب بھی آپ نکلے اور پوری تیاری کے ساتھ اور پوری اپڈیٹس لے کر ہی نکلے. تو یہ تھی بات موسم کی اور ٹریفک کی. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر روز صبح 8 سے 9 بجے جو یہ انفرٹینمنٹ یعنی انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کا پیکیج آپ کے سامنے لاتے ہیں. اس میں ہمارے مختلف سیگمنٹس اور مختلف نشریات ہوتی ہیں اور ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ تک وہ پہنچائیں اور صبح سویرے جب آپ چائے کی چشکیوں کے مزے لے رہے ہیں ہمارے پروگرام کا بھی مزہ لیں. تو آغاز میں ہم اہتمام اسی بات سے کر رہے ہیں. آج ایک نغمہ رکھا ہے جس کے جو گار اعجاز احمد راہ صاحب, ان کی آواز میں یہ نغمہ سنتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا باقی سلسلہ آگے لے جاتے ہیں. دل تنیو تھم قرار نیو تھم کبو چکر تھس آوارش کو. یہ دل تنیو تھم قرار نیو تھم کبو چکر تھس آوارش کو. بحال پننی بنائی چہرگا بحال پننی بنائی چہرگا کرک میں نش از قرارش کو. یہ دل تنیو تھم قرار نیو تھم کبو چکر تھس آوارش کو. خوابن اندر یوان چھک گہے کران چھک نناش نندرے. گہے خوابن اندر یوان چھک گہے کران چھک نناش نندرے نناش نندرے. سکیت آرامی پپت یوان چھم کرام بتارک شمارش کو. سکیت آرامی پپت یوان چھم کرام بتارک شمارش کو. بحال پننی منئی چہرگا بحال پننی منئی چہرگا کرک میں نش از قرارش کو. یہ دل تنیو
करार यूं कबो चक्कर थस आवारिश को मैं वादन रचूं मोहब्बत रछा रछा पोस गयम कयामत मैं वादन रचूं मोहब्बत रछा रछा पोस गयम कयामत सुबच दिलस मन में चान वापत रछ चोने अमारश को सुबच दिलस मन में चान वापत रछ चोने अमारश को बहाल पन्नी मनई चहरगा बहाल पन्नी मनई चहरगा करक में निश अज करारिश को ये दिल न्यू थम करार न्यू थम कहो चक्कर थस आवारिश को जवानी निसार कर मई मैं तो से पत सुटोट आदन तुम जवानी निसार कर मई मगर नहीं जा खबर है वांचु गुमत बुचो नहीं दमारश को मगर नहीं जा खबर है वांचु गुमत बुचो नहीं दमारश को बहाल पन्नी बनई चहरगा बहाल पन्नी बनई चहरगा करक में निश अज करारिश को ये दिल न्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारिश को सरस अगर जन बुजिंद तिरूदुस हसर मगर क्या छु जिंदगानी सरोज अगर सन बुजिंद तिरूदुस हसर मगर क्या छु जिंदगानी ख्याल आवा नजर परेशा जहन दिल नो गुजारिश को ख्याल आवा नजर परेशा जहन दिल नो गुजारिश को बहाल पन्नी मनई चहरगा बहाल पन्नी मनई चहरगा करक में निश अज करारिश को ये दिल न्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारिश को ये दिल न्यू थम करार न्यू थम कबो चक्कर थस आवारिश को कबो चक्कर थस आवारिश को कबो चक्कर थस आवारिश को Wichita
Vachau Maharin Sun Kya Shuban. You are jewelers chis shub lagan. You are jewelers ye hallmark son branded jewelry. Latest design of alaw guaranteed best qimtas per dastiyab chhe. Tashreef aniyo You are jewelers Shahri Khas Qaid Kadal Sarab Kadal Srinagar. इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद और कमर्शियल ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। नाजरीन मोहतरम, इस कमर्शियल ब्रेक से कबल जो आप तक हमने नगमा पहुंचाया एजाज राह साहब की खूबसूरत और खुशलहन आवाज़ में पहुंचाया, जो उन्हीं पर फिल्माया गया था और जो इसी स्टूडियो में हमने शूट किया। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश होती है कि हर दिन हम प्रोग्राम को नए अंदाज में पेश करें, आप तक पहुंचाएं, और हमारी ये भी कोशिश होती है कि नए चेहरे को नए मेहमान से आपको मुतारिफ़ कराएं, आपकी मुलाकात कराएं। हर एक की अपनी अपनी किताब होती है और नाज़रीन मोहतरम, उस किताब में वो रोज़ अलग अलग मौजू के तहत अपनी अपनी कहानी तहरीर करता है। हर एक की अपनी अपनी लेबॉरेटरी है जहां वो अपनी मालूमात के हिसाब से रोज़ नए तजुर्बे करता है। कभी कामयाब होता है तो कभी नाकाम होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, आगे बढ़ता है और इसी तरह से कारवां आगे बढ़ता है, चलता है, ये सफ़र आगे चलता है, रुकता कभी नहीं। आज जो हमारे मेहमान हैं, इसी तरह के एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में किए हैं। उनकी दिलचस्पी साइंस में थी, डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनका जो पैशन बचपन से रहा है वो पोइट्री की और कैलीग्राफी की ओर रहा है। लेकिन इन्होंने दोनों एक्सपेरिमेंट्स कामयाब किए, साइंस का भी और जो उनका अपना पैशन था कैलीग्राफी और पोइट्री का, वो भी आगे उन्होंने उसमें कामयाबी पाई। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं यंग बडिंग टैलेंटेड हमारे आज के मेहमान ज़ुहैब हुसैन। ज़ुहैब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। ज़ुहैब, यहाँ के सबसे पहले हम ये बताइएगा, इससे कबल कि हम बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करें, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कि आज आप यहाँ इस प्रोग्राम में, इस स्टूडियो में पहली दफ़ा तशरीफ़ फरमा है, कैसा लग रहा है आपके? जी, वैसे मैं इससे पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, इससे पहले आ चुके हैं। शगुफे में आते थे, हाँ। एक दो बार आया हूँ मैं शगुफे। हमारे इस प्रोग्राम इस सेटअप में मैं पहली बार आया। हमारे इस प्रोग्राम में पहली दफ़ा आप आए हैं। खैर, जिस तरह से मैंने अभी अर्ज़ किया कि हर एक की अपनी अपनी किताब होती है और उस किताब में वो रोज़ नए मौजू के तहत अपनी अपनी कहानी जो है वो एक इंसान तहरीर कर लेता है। आगाज़ से ही आगाज़ करेंगे। ज़ुहैब, कहाँ से हैं आप और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? जी, मैं श्रीनगर के जडीबल इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। तो वहाँ वो एक ऐसा इलाका है कि जो शायरी से बहुत वाबस्ता है, मुहर्रम के एतबार से। तो बचपन में बहुत पहले वालिद साहब का साया सर से उठ गया, तो उसके बाद मेरे चचा, मेरे मामू सब ने बहुत मेहनत की मुझ पे, तो आज उनके सामने एक उसका नतीजा सामने है। तो उसके बाद मेरी 10वीं की जो 10वीं जमात थी वो मैंने शाहीन पब्लिक स्कूल से पास की। तो उसके बाद एसपी स्कूल से 12वीं जमात, उसके बाद मैंने जेके सीईटी दिया। तो उसके बाद मेरी वहाँ फिजियोथेरेपी में हो रही थी और तब मैं ऐसा था कि मुझे एमबीबीएस का वो भूत चढ़ा हुआ था कि एमबीबीएस करना है, कुछ भी हो एमबीबीएस करना है। तो नहीं हुआ, तो मैं दूसरी बार मेहनत कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे लगा कि मैं एक गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। जैसे कि इंसान की एक लेवल होती है जो मैं क्रॉस नहीं कर पाया उस टाइम। तो मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड में तो आगे नहीं जा पाऊंगा, ऐसे 2-3 साल मैं सीईटी दूंगा तो वो सही नहीं रहेगा, और घर के हालात भी कुछ ऐसे नहीं थे। तो मैंने बीएससी बायोकेमिस्ट्री किया इस्लामिया कॉलेज से। तो उसके बाद वैसे ही सिलसिला रहता है, फॉर्म निकलते रहते हैं छोटी सी जॉब्स का, वो गवर्नमेंट जॉब्स का। तो ऐसे ही एक फॉर्म निकला SMHS हॉस्टल, तो मैं वहाँ गया। तो तब से ही जब मैं वहाँ एंटर हो गया तो उस वक्त से ही मेरी वो शायरी वाली सलाहियतें बाहर आने लगी, क्योंकि एक किस्म से वो मैं रोजगार के हिसाब से मैं वो थोड़ा सा स्टेबल हो गया कि नहीं अब मैं कुछ कमा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं तब से करने लगा अच्छे से।
SMHS हॉस्पिटल में क्या जिम्मेदारी आप पे आए थे? SMHS हॉस्टल में तो मैं एक छोटी सी जॉब पे ही था, वो थिएटर बॉय की जॉब थी, तो लेकिन कुछ महीने से मैं अभी डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं जूनियर थिएटर टेक्नीशियन बनूंगा। अच्छा, बड़ी हसास जिम्मेदारियां हैं वहाँ से भी। और तो इसकी तरफ कैसे आपका रुझान गया, जो आपकी पोइट्री है या जो कैलीग्राफी है, इसके बारे में का हमें कह बताएं। सकते हैं कि एक दो बड़े नाम हैं जिनको सुनते सुनते मैं पोइट्री की तरफ आया हूँ, और मेरे अंकल भी थोड़े से वाबस्ता थे पोइट्री से, लेकिन वो प्रोफेशनल तरीके से वाबस्ता नहीं थे। तो कतील मेहदी साहब और गजनफर शाहबाज साहब, और साथ ही बहुत लेट 1-2-3 साल से मैं राशिद मकबूल साहब को भी जानता हूँ। तो इनके साथ इनके कलाम सुन सुन के मैं पोइट्री की तरफ आ गया। एक उस्ताद रहे क्योंकि जब आपने लिखा होगा तो फिर इसको एक प्रूफ रीड भी करना पड़ता है कि जी, शाहीन पब्लिक स्कूल में हमारे टीचर हुआ करते थे कतील मेहदी साहब, तो जब मैं वहाँ पढ़ता था वो हमें तब उस फन के एतबार से सिखाते थे, वो हमें वो चीज़ें सिखाते थे जो शायरी में लगते हैं हमें, जो चीज़ें शायरी में होती है, लेकिन तब हम बहुत छोटे थे, तब वो चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो जब मैं इस फील्ड में आ गया, जब मैंने लिखना शुरू किया, तब मैंने मेहदी सर को कांटेक्ट किया, कतील मेहदी साहब को। ज़ुहैब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आपने जिस तरह से अभी फरमाया कि जब आपको ऐसा लगा कि आप फाइनेंशियली अब स्टेबल हो रहे हैं, उसके बाद आपके अंदर का जो शायर है वो अचानक जाकर, तब तक वो शायर कहाँ था? नहीं, शायरी तो बचपन से थी, लेकिन वो उस लेवल की शायरी नहीं थी, वो किसी को दिखाने लायक शायरी क्या बदल गया जो लेवल आ गई? वो लेवल आने में एक चीज़ होती है कि जब आप घर में एक जिम्मेदार शख्स होते हैं तो आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, और जब आपको लगता है कि मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ तो आपका माइंड फ्री होता है, तो वो माइंड फ्री होता है तो आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। और शायरी का तो ये सिलसिला है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आप अच्छा लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो वही चीज़ हो गई, मैं ज़्यादा पढ़ने लगा तो इसीलिए मैं। तो सबसे पहले फिर आपने कब कलम बंद करा अपने अल्फाजों को, अपने कलाम को? सबसे पहले मैं गज़लें तो नहीं लिख रहा था, मैंने 2014 में उसी साल मेरी ये भी हुई थी अपॉइंटमेंट भी हुई थी। जी। अच्छा। तो उस साल मैंने एक नोहा लिखा था। अच्छा। तो जब मैंने वो अपने हल्के, हमारे इसमें होता है कि हल्के होते हैं, एक मोहल्ले का एक हल्का होता है जिसमें हम वो नोहे पढ़ते हैं, पेश करते हैं। तो मैंने जब उनको दिखाया तो कुछ लोगों ने वो बहुत लाइटली लिया और कुछ लोगों ने बहुत सराहा, मुतासिर हो गए जी। तो उससे मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। जिन्होंने वो सराहा नहीं, तो उससे मेरी लाइफ पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा 1-2 साल। तो मैं लिखना स्टॉप किया। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये गलत है। तो फिर मैंने मेहदी सर को कंसल्ट किया। तो मेहदी सर से जब मेरी बात हुई तो वहाँ सालाना मुशायरा एक होता है, तो उन्होंने मुझे उस मुशायरे में मौका दिया। और उस मुशायरे में बहुत बड़े नाम थे, परवेज़ मानू साहब थे, आदिल अशरफ साहब थे, तो कतील मेहदी साहब भी, गजनफर शाहबाज, बड़े बड़े नाम थे। तो जब मैंने उस मुशायरे में वो नौहा पढ़ा, क्योंकि वो हुसैनी मुशायरा था, अच्छा, तो वहाँ बहुत सराहा गया मुझे। एंड फ्रॉम दैट डे आई नेवर स्टॉप। लेकिन एक बात इकरा, इनने जो मेहमान का इंकशाफ है कि हौसला अफजाई नहीं हुई तो ये 2 साल रुकी, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक इंसान गलती भी करता है तो हमारी नाज़रीन यही जिम्मेदारी है कि हम अगर हौसला शिकनी ना करें, कोशिश करें कि हम इसको जो उसका जो विल पावर है, उसकी जो मोटिवेशन, उसे बढ़ाने की कोशिश करें। और दे से वर्ड्स कैन मेक यू एंड दे कैन ब्रेक यू। इंसान बड़ा। ज़ुहैब, आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे जो नाज़रीन है वो भी शायद इस इश्तियाक में होंगे, हम भी इश्तियाक में हैं कि हमने पोइट्री के हवाले से बात तो की, लेकिन तबरुकन हमने अभी तक नाज़रीन तक कुछ नहीं पहुंचाया। क्या पहुंचाएंगे? मैं एक नज़्म सुनाऊंगा, जरूर। वो उसी हुसैनी मुशायरे में मैंने लिखी थी। तो उसके बैकग्राउंड में एक बहुत अहम बात है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब उस साल मैंने एक नोहा लिखा था, बहुत मकबूल हुआ था वो नोहा, तो लेकिन उसका रदीफ भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा। लेकिन एक चीज़ थी कि मुशायरे की दावत आ गई, लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था मुशायरे के लिए। तो मैं कल मुशायरा था, मैं रात के 2 बजे तक बैठा था, कुछ खोज रहा था, मैं कुछ लिखना है, कुछ नया लिखना है। वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, पढ़ी हुई है, कुछ नया लिखना है, तो नहीं हो रहा था। तो 2-2:30 बजे के आसपास मैंने सोचा कि अब मुझे वही पुराने कलाम ही पढ़ने पड़ेंगे, तो मैं सोने लगा। जो ही मैं लेट गया तो एक लाइन आ गई मेरे जहन में, वो यूँ थी कि नज़र गई जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ हुसैन है। तो मैंने इस लाइन को कंटिन्यू करने के लिए मैं उठ गया, मैंने कंटिन्यू किया, एंड टिल डेट
इस कलाम को ना मैंने एडिट किया है, ना मैंने इसकी प्रूफ रीडिंग की हुई है, ये जैसे मैंने लिखा था ये बिल्कुल उसी सूरत में है, और ये कलाम मेरे दिल के बहुत करीब है। तो वो यूं है कि तब रुकन हम तक पहुंच जाए। नजर गई जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ हुसैन है, गली गली शहर शहर रवां दवां हुसैन है, खुदाई की सिफात में तो दीन की हयात में, हरूफ हल अता में भी नहा नहा हुसैन है। और ये शेर कभी सिना की नोक पर कभी है बाम अर्श पर, ज़माना सोचता है ये कहाँ कहाँ हुसैन है। तो जहाँ है इसके नक्श पा वही है हक का रास्ता, वहाँ वहाँ है रोशनी जहाँ जहाँ हुसैन है। ये हौसलों की जंग का अकेला शहसवार है, सिपर सिपर हुसैन है, सिना सिना हुसैन है। ये हौसलों की जंग का अकेला शहसवार है, सिपर सिपर हुसैन है, सिना सिना हुसैन है। ये शेर की यजीद वक्त क्या करे हुसैन से न क्यों डरे, यजीद वक्त क्या करे हुसैन से न क्यों डरे, कि हर तरफ जहान में यहाँ वहाँ हुसैन है। और ये शेर की जहान दर्द में कहाँ हुसैन की हो हमसरी, के आह आह दिल बदिल फुगा फुगा हुसैन है। ये आखिरी शेर की है आरज़ू कि रोज़े हश्र खुद हुसैन ये कहे, है आरज़ू बरोज़े हश्र खुद हुसैन ये कहे, ज़ुहैब तू करीब आ यहाँ यहाँ हुसैन है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप जो है बहुत खूबसूरत लिखते हैं। किताबी शक्ल दी है अभी तक जो आपकी पोइट्री कलेक्शन है? किताबी शक्ल मैंने अभी नहीं दी, क्योंकि अभी भी मैं अपनी लाइफ के स्ट्रगल में ही हूँ। अच्छा। तो अभी शक्ल नहीं दी हुई है, लेकिन रेख्ता पे कुछ गज़लें मैंने उनको भेजी थी, उन्होंने वो अपलोड की हुई है। जिंदगी तो मुसलसल ही एक जद्दोजहद है, लेकिन खुशकिस्मती इस बात की है कि वालिद साहब का साया उठने के बावजूद आप ज़िंदगी में इतने आगे आए हैं, और आज एक इंस्पिरेशन बन के हमने आपको स्टूडियो में दावत दी है। और हमें बताया जो आप कैलीग्राफी के साथ भी वाबस्ता हैं, आप कलम के साथ भी उसके साथ भी कुछ, उसके बारे में हमें तो हमारे नाजरीन को भी थोड़ा आगाही दें। वो चीज़ भी बचपन में मैं करता था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो स्कूल में कुछ बोलते हैं, कुछ लिख के लाइए, कुछ लाइए, तो वो चीज़ें करता था मैं पहले। फिर जब वो कोविड-19 आ गया तो उसमें हमारी ड्यूटी बहुत हेक्टिक रहती थी, मतलब 2-2 3-3 दिन ड्यूटी देनी पड़ती थी, और 6-6 7-7 दिन हम घर में होते थे। तो मेरा ये शेड्यूल रहता था, मैं ड्यूटी तो देता था, ड्यूटी के बाद जब मैं आता था तो वो 6 दिन 7 दिन में बिल्कुल अपने रूम में देता था। अच्छा। इस चीज़ को सीखने में, एंड इस चीज़ को सीखने में मैंने वो बोलते हैं ना कि 12 घंटे प्रैक्टिस की हुई है। तो आज बहुत कम वक्त में मैं थोड़ा परफेक्शन की तरफ आ रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कैलीग्राफर्स क्या करते हैं कि वो हर फॉन्ट पे काम करते हैं, हर फॉन्ट में। तो मैंने एक चीज़ सोची कि मैं एक ही फॉन्ट पे काम करता हूँ, जो चीज़ जो फॉन्ट मुझे अच्छा लगा मैंने उसी फॉन्ट पे काम किया, एंड उस वजह से इस फॉन्ट पे मैं थोड़ा महारत हासिल करूँ। आपने जो कैलीग्राफी के नमूने अपने साथ आप लाए हैं मॉर्निंग में, जो आप अपने साथ लेकर आए थे, वो हम अपने नाज़रीन को भी दिखाएंगे, इन बिटवीन बात भी करेंगे। हमें ये बताइएगा, जो कि हर एक इंसान चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे उसका अपना जो पैशन हो, उसे तराशने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने कहा कि फिर मैंने कोशिश की, और आपने अपनी पोइट्री के हवाले से कहा कि मैंने इन्हें कंटैक्ट किया, मेहदी साहब को आपने कंटैक्ट किया। एक उस्ताद की एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी अहमियत होती है, वही एक बच्चे को संवारता है, उसे बनाता है। आपके इस सफ़र में जो कैलीग्राफी में उस्ताद रहे, उस्ताद कौन रहे? क्योंकि उस्ताद की भी बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल, कैलीग्राफी में तो उस्ताद सबसे ज़्यादा, अगर किसी चीज़ में उस्ताद की ज़रूरत है वो तो कैलीग्राफी में है। और उसी चीज़ में अभी मैं भी तलाश में ही हूँ कि मुझे कोई उस्ताद मिले जिनसे मैं मिलूँ कि यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ तो ये ठीक है। लेकिन मैंने एक कैलीग्राफर है मिडिल ईस्ट के, उमर दीन, तो उनकी एक बुक आती थी, तो वो मैंने लाई हुई है, एंड उस पे सारे बेसिक्स है, उन पे मैंने काम किया है। एक ही फॉन्ट के बेसिक्स हैं। एंड कैलीग्राफी का क्या है कि जितना अच्छा आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं क्या करता हूँ, मैं मिडिल ईस्ट के सब कैलीग्राफर्स को फॉलो करता हूँ, तो मैं उसी से सीख रहा हूँ। तो कोई मतलब वर्चुअल मेहनत इस पे आप कर रहे हैं, तभी जाके अस्तिशुबे
آز یہ خوش قسمتی سن سہ گو یہ اس نش آز اخ بوڑ میڈیم اس زن اس نش یہ ورچوئل میڈیم یم ذریعہ اس واریاہ چیز ہیچت ہیکو سہ تہ گھر بہت اس ہیکو ونتھ کہ اگر اخ انسان صحیح ات مز صحیح استعمال کرے امیک یہ اخ بوڑ وستاد ثابت سپدا. خیر بات چیت کا سلسلہ ہم اب سے اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور بھی کئی ساری باتیں آپ سے جاننی ہوگی پروگرام میں, لیکن ناظرین محترم فی الحال ہم رکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے. ہم یوں گئے اور یوں آئے. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالما روڈ, کاجی کدل, سراف کدل, سری نگر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں سینکڑوں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں. جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی, وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا. آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. یہاں پہ ہر فیسلٹی اور ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری, رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے. اللہ کا شکر کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روپ کیا ہے. ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے اور تمام اسٹاف ڈاکٹر والوں کو بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. ناظرین ویلکم بیک. وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. وہ ایک شاعر لکھتے ہیں, نہ تو دولت ہے نہ دینار و درہم رکھتے ہیں, ہم تو اتنے میں خوش ہیں کہ قلم رکھتے ہیں. آج چونکہ ہمارے ساتھ قلم کے کاریگر مسٹر زہیب حسین صاحب ہیں جو کہ پوئٹ بھی ہے اور کیلیگرافر بھی ہیں, ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ابھی وقت ہو چلا ہے اخبارات کی سرخیوں کا. پہلے سرخیاں لیتے, اس کے بعد اپنے مہمان سے مزید باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے, اس کی شہ سرخی ہیں LG's ملاقات, monitor and resolve public issues in a fast track manner. LG to administrative secretaries, DCs to maintain digital records of public meetings and submit ATRs. جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس ناظرین محترم, اور اس اخبار سے بھی دو ذیلی سرخی آپ تک پہنچاتے چلے. جموں کشمیر میں 22 لاکھ لوگوں کو ملے گا پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق. ووٹروں کی کل تعداد 99 لاکھ ہونے کے امکان. جی میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ ہے, اس کی خبر ہے 2 لڑکے دریائے جہلم میں کود گئے اور دیکھتے دیکھتے ڈوبنے لگے. پولیس نے پھرتی سے ریسکیو آپریشن شروع کر کے دونوں کو بچایا. جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس ناظرین محترم, اور اس اخبار سے بھی ہم یہ اہم سرخی آپ تک پہنچاتے چلے. ہیٹ ویو ڈیمیجڈ ویجیٹیبل فروٹ کراپس, ہٹ ملک پروڈکشن ان جموں اینڈ کشمیر, ایکسٹریم ٹیمپریچرز اینڈ ہیٹ ویوز ان سیورل ڈسٹرکٹس آف جموں اینڈ کشمیر. جی میرے پاس اور ایک انگریزی روزنامہ, اس سے 2 خبریں لیتے ہیں. ایک ہے کہ ہنڈریڈس آف ڈیوٹیز جوائن 3-day کیلاش یاترا ان بدوا, اور ایک خبر ہے جو کہ کووڈ سے ہیں. JNK logs 259 نیو کووڈ کیسز, ایکٹیو کووڈ کیسز ان کنٹری ڈکلائن ٹو 96,442. جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس اخبار سے بھی ہم آپ تک یہ اہم سرخی پہنچاتے چلے. ہندوستان ایک پرامن, محفوظ اور مستحکم افغانستان کی حمایت کرتا ہے. افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کیا جائے, راجناتھ سنگھ. جی میرے پاس اور ایک انگریزی روزنامہ ہے, یہ ٹورزم اور ایڈونچر ٹورزم کے بارے میں ہے. آؤٹ لک ٹریولر ایوارڈز 2022, JNK بیگز ایوارڈ فار پروموٹنگ آف بیٹ ڈیسٹینیشنز اینڈ ایڈونچر ٹورزم. ہاں میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ ہے, اور اس اخبار سے بھی دی پیپل عنوان کے تحت یہ خبر شائع ہوئی ہے. ود 2.5 بلین فالوورز, کرکٹ ریٹڈ سیکنڈ موسٹ پاپولر اسپورٹ, سو کشمیر's بیٹس مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیو برائٹ فیوچر. جی میرے پاس آخری اردو مقامی روزنامہ, اس کی خبر ہے آرمپورہ سوپور میں بھیانک آتش زدگی, کم از کم 4 رہائشی مکان خاکستر, کروڑوں کا نقصان.
आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा है और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाना चाहेंगे। गुज़श्ता साल महकमा तालीम के 50% तामीराती काम तवारत का शिकार। मरकजी वजारत तालीम की जम्मू और कश्मीर हुकूमत को तमाम मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है यंग बडिंग टैलेंटेड कैलीग्राफर और पोइट ज़ुहैब हुसैन। आपको पता है अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि ज़ुहैब हमें यहाँ लाइव ही बनाकर दिखाएंगे, यानी वो यही जो कैलीग्राफी के साथ वो मुंसलिक है, कुछ ना कुछ तो आज हमें वो यहाँ लाइव करके दिखाएंगे। अब मैं ये सोच रही हूँ कि हम क्या लिखवाएं, आपका नाम, मेरा नाम, या बेहतर है कि इसी का नाम लिखवाएंगे, लेकिन हम अपने प्रोग्राम का नाम लिखवाएंगे गुड मॉर्निंग JNK का, लेकिन उसके लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। नाज़रीन मोहतरम, हम आप तक इसके साथ साथ सेगमेंट भी पहुंचाते हैं और उसमें जो अच्छा खूबसूरत सेगमेंट होता है वो गुड मॉर्निंग एजुकेशन की शक्ल में होता है। तो आइए गुड मॉर्निंग एजुकेशन देखते हैं, पेश करेंगे डॉक्टर तारिक मरगूब। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, वेलकम आप सबका जो लोग देख रहे हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ कंसिस्टेंसी पे, इस सेगमेंट पे, यानी मुस्तकिल मिजाजी। ये कंसिस्टेंसी आप देखिए कि अगर एक पानी का कतरा भी, वो इंटेंसिटी नहीं देखता है, पानी का कतरा अगर लगातार पत्थर पे भी करता है तो सुराख कर देता है। तो दैट कंसिस्टेंसी अगर कामयाबी चाहिए ज़िंदगी में, ये बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। तो बेटा ये कंसिस्टेंसी डेवलप करो। ऐसा नहीं है कि पहले में देखिए, अगर आप कभी मैं सपोज आपने जिम ज्वाइन किया है और आप अगले दिन आएंगे तो शीशे में देखेंगे अच्छा मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क हो गया। अगले दिन जाएंगे, फिर आएंगे, फिर कहेंगे मुझे फ़र्क नहीं हुआ। 5-6 दिन के बाद आप कहेंगे नहीं छोड़ दो, कुछ नहीं हो रहा है। जेस्टेशन पीरियड, जैसे कहते हैं मक्की के अगर भुट्टे के बीज को भी बोलना है तो उसको 3 महीने लगेंगे बाहर आ जाने में। तो ये, मगर ऐसा नहीं है कि वो 3 महीने बिल्कुल बेकार बैठा है, उन दिनों वो काम पीछे हो रहा है। तो कंसिस्टेंसी बच्चों को सिखाई जा सकती है। बेटा कामयाब अगर ज़िंदगी में होना है तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बेटा जो काम लिया था, देखिए जितने भी दुनिया के बड़े कामयाब लोग हैं वो उतने ही फेलियर्स हैं। आप थॉमस एडिसन को देखिए, 9990 बार फेल हो गया तो उसको किसी ने बोला कि आप तो इतनी बार, उसने कहा नहीं मुझे इतने तरीके मिले कि ऐसे बिजली नहीं बनाया जा सकता, ऐसे फिलामेंट नहीं बनाया जा सकता। सो ये कंसिस्टेंसी अगर बच्चों को हम सिखाएं स्कूल में कि बेटा देखो ठीक है, आपको लगेगा कि मुझे आज ये नंबर नहीं आए, आपको लगेगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने वही कहा, जैसे आपका जिम में आने के बाद अगर लगातार जाएंगे, और ये नहीं है कि फोर्सफुली इंटेंसिटी कितनी है आपके, मैटर नहीं करता कि मैं आज गया तो मैंने आज 10 किलो का वो डंबल उठा लिया और 9 घंटे में वहां रहा, नहीं, वो 9 घंटे कुछ काम नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं सिर्फ 20 मिनट डेली जिम में जाऊंगा और 6 महीने जाऊंगा तो रिजल्ट आ जाएगा। ये कंसिस्टेंसी बच्चों को सिखाई जा सकती है स्कूल में। उनको वो टॉपिक्स और वर्कशॉप में कराया जा सकते हैं, ऐसे वर्कशॉप जिनसे बच्चों को ये पता चलेगा कि फॉलिंग इज नेवर फेलिंग, द मोमेंट वी क्विट वी फेल। हमें अगर कील भी किसी, और ये वर्कशॉप में होता है, एक लकड़ी दे दीजिए बच्चे को, उसको बोले ठोको इसमें, ये तो कोई पावरफुल बंदा होगा वो आएगा तो लकड़ी ही फट जाएगी, या वो वर्कशॉप कराए जाते हैं अलग तरीके से। सो इट नीड्स कंटिन्यूअस हैमरिंग बेटा, जब तक ये लकड़ी के अंदर घुस जाएगा। और ऐसे जैसे हम पत्थर तोड़ते हैं, 9 हथौड़े मारने से पत्थर नहीं टूटता, हम कहते हैं कुछ नहीं है, वो बंदा छोड़ जाता है और अगला बंदा सिर्फ 1 हथौड़ा मार के उसको करता है। तो उसका मतलब नहीं कि वो 9 ने काम नहीं किया, 9 ने काम किया था जो हमें नहीं दिख रहा था। आप देखिए जो सीड नीचे ज़मीन के होता है, सिर्फ एक फेथ चाहिए कि नहीं, बिकॉज ऊपर वाला कभी भी किसी की मेहनत रायगार नहीं करने देता। तो हमें जब नहीं होती है तो वी शुड हैव दैट फेथ कि बेटा लगे रहो और कामयाबी आपके उसमें आ जाएगी। सो दीज कंसिस्टेंसी, मैंने कहा कि इन फ्यूचर बच्चों के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली एकेडमिक क्वालिफिकेशन विच इज़ गोइंग टू बिकम ओनली एंट्री पास। मैंने यूनेस्को कह रहा है कि अगले 15-20 साल में दुनिया में इतने ग्रेजुएट्स होंगे जितने हिस्ट्री ने अब तक प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो व्हाट विल हैपन, सक्सेसफुल कौन होगा? दोज पर्सन हु विल बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड एकेडमिकली। ये चीज़ें इंकलकेट की जा सकती है, मॉरल वैल्यूज़ की जा सकते हैं। ऐसा नहीं साल में हमने एक दिन किया कि आज का ये दिन है उस दिन बताएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। हमें इसके लिए वर्कशॉप्स करने चाहिए। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि ISPD वर्कशॉप अगर स्कूल में बाई वीकली कोई भी टॉपिक पे बच्चों को इन्वॉल्व कीजिएगा, दे विल टेक इंटरेस्ट। वो आगे वाले के लिए, क्योंकि दे विल बिकम सॉल्यूशनरिस्ट, उनको पता चलेगा, दे विल बिकम रेस्पॉन्सिबल अपने डीड्स के लिए। ये अगर हम करें थ्रू ISPD या इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम,
یہ بچوں کو کرایا جا سکتا ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے, یہاں کیوں نہیں, یہاں بھی کر سکتے ہیں بچے, اینڈ دے ول فلرش اور دے ول ٹیک انٹرسٹ, اینڈ ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا اور ان کی اٹینشن پاور بڑھ جائے گا. دس کین ہیپن. تو آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK اور مجھے دے دیجیے اجازت. ویلکم بیک. ڈاکٹر طارق مرغوب آپ تک پہنچا رہے تھے گڈ مارننگ ایجوکیشن کا یہ خصوصی سیگمنٹ. ناظرین محترم, ہم کئی ساری باتیں نظر انداز کرتے ہیں, بالخصوص جب بچوں کی بات ہوتی ہے. ہم اکثر ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم اس سبجیکٹ کو آپٹ کر لو, اس سبجیکٹ کا انتخاب کرو, لیکن اس کی اپنی ذاتی خواہش کیا ہوتی ہے وہ کبھی اظہار نہیں کر پاتا. پھر وہ شاید وہاں پہنچ بھی جائے لیکن بہت دیری سے پہنچتا ہے, وقت لگتا ہے. ناظرین محترم, آج جو ہمارے مہمان ہیں اگر وہ eپنے پیشن کو ڈیڈیکیٹڈلی فالو نہیں کرتے تو شاید وہ آج ہمارے بیچ نہیں ہوتے. ہمارے آج کے مہمان زہیب حسین جو بڈنگ پوئٹ ہے اور کیلیگرافر ہے. جیسا کہ ہم نے اسے قبل آپ کو یہ کہا تھا کہ جو خوشخطی کے نمونے انہوں نے اپنے ساتھ رکھے ہیں ہمیں تو آپ کو دکھائے, لیکن اس کے علاوہ وہ کیلیگرافی یہاں لائیو کر کے دکھائیں گے. اور ہم دونوں کی درخواست پہ ہمارے پروگرام کا نام گڈ مارننگ JNK ہی لکھیں گے. تو کریں بسم اللہ. خاص قسم کے قلم اس میں استعمال ہوتے ہیں, اس میں بیمبو سب سے بیسٹ رہتے ہیں. اچھا, میرے پاس زیادہ نہیں تھے چھوٹے سائز کے تو اس لیے میں نے یہ والے لیا. یہ بھی بہت ڈفرینٹ ملکوں کے بیمبوز ہی ہے. تو یہ والا جو ہے یہ پرشین ہے اور یہ انڈونیشین ہے. اوکے. اینڈ آپ وہ بولتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے بھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیشن ہو, آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں. میں نے آئس کریم سٹکس سے بھی کیا. ارے واہ کیا بات ہے, وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور دکھائیں گے. میں جو بڑی چیزیں بناتا ہوں, بڑی پیسز بناتا ہوں, اس میں بھی اکثر میں آئس کریم سٹکس کا استعمال کبھی کرتا ہوں. اچھا, ٹھیک. تو بنانے میں کتنی کنسسٹنسی کی ضرورت, کیونکہ کنسسٹنسی کی بات چل رہی تھی ڈاکٹر طارق صاحب اس چیز میں بہت زیادہ کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. مطلب آپ کچھ بھی کام کرے دن میں آپ کو 10-15 منٹ دینے ہی دینے ہیں. آپ نہیں دیں گے آپ بھول جائیں گے. آپ پریکٹس بہت ضروری ہے. اور کوئی سیپریٹ اس کا جیسے ایک سنٹیکس ہے کہ ہاتھ میں قلم کو ایسے لینا ہے, جی کہ آپ کا نیچرل جو ہے ویسے بھی آپ چل سکتے ہیں؟ آپ نیچرل, اگر میں ابھی یہ آپ کے ہاتھ دوں تو پورا سمجھ آئے گا کہ آپ میں اور مجھ میں, آپ کی لکھائی میں اور میری لکھائی میں کتنی ڈفرینس ہے. تو اس میں ہم تھوڑا ترچھے طریقے سے 45 ڈگریز پہ لیتے ہیں قلم کو اکثر, جو فونٹ میں یوز جس فونٹ میں میں کام کر رہا ہوں, اور بہت مختلف فونٹ ہیں ان میں مختلف طریقے سے لیا جا سکتا ہے. اچھا, تو یہ جو آپ نے قلم کے حوالے سے بات کی کہ ایک کوئی انڈونیشیا سے قلم ہے اور کہیں آپ کو پرشین, یہ آپ نے یہیں سے خریدے؟ جی, انسٹاگرام پہ ایک پیج ہے کاغذ اور قلم, وہ بہت بڑھیا سپلائیز دیتے ہیں, تو وہاں سے میں خرید رہا ہوں. اس کے علاوہ جو آپ ان کا ذکر کر رہے تھے یا آئس کریم سٹکس کے حوالے سے, آپ نے کس طرح سے انہیں نا, آپ دیکھیں انہوں نے ایگزیکٹلی, یہ تو مجھے قلم ہی لگ رہے ہیں, اور میرے خیال سے جو اس میں انٹرسٹڈ ہے, جو دلچسپی رکھتے ہیں, وہ گھر بیٹھے بھی انہیں بنا سکتے ہیں, بشرطیکہ آپ انہیں دکھائیں گے کس طرح سے بنا. میرے خیال سے لوگوں کی یہی شکایت رہتی ہے کہ ہم اپنے پیشن کو فالو کرتے, اسباب کی کمی رہتی ہے, اور یہ ایک زندہ مثال ہے کہ آپ آئس کریم سٹک سے بھی بس شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ولولہ ہے. اصلی یوزلیس باسان اس کی آئس کریم تب بجے دیرت سنا, مگر بچہ ہیکن امیک استعمال تہ کرت, تم ہیکن سٹارٹنگ, انفیکٹ اگر تم یژھن تم ہیکن بگننگ آئی میں بالکل اگر تم انٹرسٹڈ ہیں. میں بول رہا ہوں کہ میں بڑے پیسز جو کریٹ کر رہا ہوں ان میں اس کا آپ استعمال کرتے ہیں. جی, ہماری یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ جدوجہد کی وہ حرارت ہے تو آپ کے پاس اسباب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے لے آئے گا. صحیح بات ہے, جب تک طلب ہے تب تک ایک انسان کہیں سے بھی کچھ بھی نارملی کھول لیتا ہمارے ہے. لیے تو یہ کوئی فائدے والی چیز ہی نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کا بھی استعمال کیا, اور کہہ رہے کہ اسی سے سب سے بہترین جو میں نے بنائی ہے اسی سے بنائی ہے. صحیح. آپ اس میں صرف 3 رنگ استعمال کرتے ہیں, کالا, یہ لال رنگ ہے, بہت سارے کلرز استعمال ہوتے ہیں, براؤن بھی ہوتا ہے, بہت سارے. تو مجھے زیادہ پسند بلو ہے تو اس لیے میں نے بلو ہی لایا. اوکے,
अच्छा ठीक, आप इसको पूरा भी करते रहें, तब तक जो हम पे जिम्मेदारी आयद होती है हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से वो भी हम अंजाम देंगे। फिलहाल आप तब तक ये कंप्लीट करें और नाज़रीन मोहतरम हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, जल्दी हाजिर होते हैं। Wichita Maharin Sun Kyachi Shuban. You are jewelers chis shub lagan. You are jewelers yet hallmark son branded jewelry. Latest design of alawa guaranteed best kumtas per distiyab che. Tashreef aniyu You are jewelers Shahri Khas, Qaid Kadal, Sarab Kadal, Srinagar. अगर आप औलाद की खुशी के लिए तरसते हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुल्क की नामवर IVF एक्सपर्ट डॉक्टर नीलू कोरा डॉक्टर मुख्तार इमेजिंग सेंटर अपोजिट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनगर श्रीनगर में बे औलाद जोड़ों का इलाज करेगी। याद रहे, डॉक्टर नीलू कोरा के हाथों से अब तक सैकड़ों बे औलाद जोड़ों को औलाद की खुशी मैसर हुई है। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल 8803-780-280 9417-278-732। नाजरीन मोहतरम सुबह खैर, पेश खिदमत है रोज़गार के हवाले से चंद इतलात गुड मॉर्निंग रोज़गार में। आगाज़ करते हैं इस इतला से। सिकिम्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिमना श्रीनगर को सीनियर रेजिडेंट्स रजिस्ट्रार्स की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिन शोबों में ये असामियाँ पुर की जा रही हैं वो हैं एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर, डर्मेटोलॉजी और जनरल सर्जरी एंड सर्जिकल कैजुअल्टी। इस ज़मीन में दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.skimsmc.edu.in। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र हरियाणा को इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबों में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की असामियाँ पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 99। जिन शोबों में ये असामियाँ पुर की जा रही हैं उनकी तफसील यूँ है। सिविल इंजीनियरिंग 19 असामियाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 10 असामियाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12 असामियाँ, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 6 असामियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 7 असामियाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 15 असामियाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 8 असामियाँ, फिजिक्स 5 असामियाँ, मैथमेटिक्स 2 असामियाँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 4 असामियाँ और कंप्यूटर एप्लीकेशंस 9 असामियाँ। तनख्वाह का स्केल 1,01,500 1,67,400 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 5 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nitkr.ac.in। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी भुवनेश्वर उड़ीसा को ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज की असामियाँ पुर करना मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 189। असामी की तफसील यूँ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 58 असामियाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 41 असामियाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 32 असामियाँ, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 14 असामियाँ, केमिकल इंजीनियरिंग 14 असामियाँ, माइनिंग इंजीनियरिंग 10 असामियाँ, सिविल इंजीनियरिंग 7 असामियाँ और केमिस्ट्री 13 असामियाँ। उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने मुतल्लिका डिसिप्लिन में BE या BTech किया हो। इसके अलावा उम्मीदवार ने गेट 2022 का इम्तिहान क्वालिफाई किया हो। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 11 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nelcoindia.com। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नई दिल्ली मरकजी सरकार के मुख्तलिफ इदारों में जूनियर इंजीनियर्स की असामियाँ पुर करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान का इनेकाद कर रहा है। इंजीनियरिंग की जिन डिसिप्लिन में ये असामियाँ पुर की जा रही हैं वो हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। जिन इदारों में ये असामियाँ पुर की जाएंगी वो हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन,
Directorate of Quality Assurance Naval, Faraka Barrage Project, Military Engineer Services, National Technical Research Organization और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 2 सितंबर 2022 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉगिन करें www.ssc.nic.in। तो नाज़रीन मोहतरम, आज का गुड मॉर्निंग रोजगार बस इतना ही। इंशाल्लाह इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K। और नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से हमने अर्ज किया था ब्रेक से कबल कि हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, लेकिन हमने साथ में ये भी जिक्र किया था कि प्रोग्राम में हम पे और भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती है। उसके साथ साथ गुड मॉर्निंग एजुकेशन भी पहुंचाना होता है और बिलखसूस थर्सडे के दिन गुड मॉर्निंग रोज़गार का भी अहतमाम होता है, जहाँ पर जॉब्स के हवाले से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या आई है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। हम तक पहुँचा रहे थे सलीम एजाज कपरा, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं ना कि हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो ज़ुहैब हुसैन है, यंग पोइट और कैलीग्राफर है। अभी तक वो यहाँ बना रहे थे हमारी दरख्वास्त पे खूबसूरत सा नमूना गुड मॉर्निंग J&K। तो हमने दरख्वास्त की थी माजिद और मैंने इनसे कि आप हमारे प्रोग्राम का नाम लिख लें, तो इन्होंने खूबसूरत अंदाज में से लिखा है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। माजिद क्या ख्याल है? वक्त की किल्लत भी थी लेकिन कारीगर की वो कारीगरी बिल्कुल दिख रही है, वो झलक रही है। इसे ना हम फ्रेम बना के यहाँ सजाएंगे, वही हम तो कह रहे हैं। हमारा ऐसा इरादा है, हम इसको एक फ्रेम बनाएंगे और फिर यहाँ सजाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, थैंक यू सो मच। ये जो खूबसूरत नमूना बतौर हम इसको एज गिफ्ट ही ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। हम प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमने कैलीग्राफी के भी हवाले से भी बात की और हमने पोइट्री के हवाले से भी बात की। उसके बाद हमने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि आपकी जो किताब है, कोई किताबी शक्ल दी है? आपने कहा भी नहीं। कोई किताबी शक्ल देने का कोई इरादा है आगे? जी, इरादा है, किताबी शक्ल देंगे। वो घर की मसरूफियात की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। तो घर में कुछ ऐसे हालात हैं कि मासी बीमार है, कुछ ऐसी चीजें हैं, उस वजह से कई सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है। बहुत सारी, जैसा कि माजिद कह रहे थे कि जिंदगी जो है एक मुसलसल जद्दोजहद है। बेशक। जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए भी और हमारे लिए भी इब्रकन आप कुछ पहुंचाए अपनी शायरी के इस मजमूए में से। जी, अब आप अगर बोले मैं नौहा पढ़ूं या मनकबत, जैसे आपकी ख्वाहिश, जैसे आप मुनासिब समझेंगे, जिस तरीके से आपको ठीक लगे। मैं नौहा ही पढ़ता हूँ। ठीक है। ये 2-3 साल पहले लिखा था मैंने, तो बहुत मुख्तलिफ था इसलिए। ऐसे कि उम्मे लैला का लुटा गर, हाय अकबर हाय अकबर हाय अकबर हाय अकबर हाय अकबर हाय अकबर। वक्त रुखसत भोली मादर, मुझसे वादा कर लो बेटा। वक्त रुखसत भोली मादर, मुझसे वादा कर लो बेटा। ख्वाब में आओगे अक्सर, हाय अकबर हाय अकबर। उम्मे लैला का लुटा गर, हाय अकबर हाय अकबर। सुबह आशूरा का मंजर, कैसे भूलेगा ज़माना। सुबह आशूरा का मंजर, कैसे भूलेगा ज़माना। गूंजना अल्लाहु अकबर, हाय अकबर हाय अकबर।
लैला का लुटा घर हाय अकबर अपने बाबा को पुकारा जब लगा सीने पे नेजा अपने बाबा को पुकारा जब लगा सीने पे नेजा जीन से आया जमी पर हाय अकबर लैला का लुटा घर हाय अकबर देखिए हाय अकबर का जनाजा कैसे मौला ने उठाया हाय अकबर का जनाजा कैसे मौला ने उठाया लाए जिब्रील ने शह पर हाय अकबर लैला का लुटा घर हाय अकबर वो शबाहत मैं नबी था और जुर्अत मैं अली था वो शबाहत मैं नबी था और जुर्अत मैं अली था रगों में खून जाफर हाय अकबर लैला का लुटा घर हाय अकबर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत और बहुत शुक्रिया हम तक ये नवाह पहुंचाने के लिए, नवाह खानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक सवाल रहेगा जो ज़ाती भी नहीं है, जनरल ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ज़ाती सवाल है। वो ये कि अख शायर इनबॉर्न अख हसास इंसान मगर अत हसासियतस गोस कह नत कह चीज़ वुतुश दिन तुहंदिस अत हसासियतस कुछ चीज़ वुतुश दिवान ना पुश आख। ये एक जब एक इंसान शायरी की तरफ होता है तो ये एक जिम्मेदारी होती है, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकते, तो एहसासात का एक मजमुआ होता है आपके पास। आप खुद भी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू जा चुके होते हैं और वहाँ से आप जब इस करबला के एतबार से लिखते हैं तो आपके सामने सारा खाका सामने होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो असल में यही चीज़ें हमें हसास बनाती हैं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु उनकी प्रोजनी, उनके नवासे रसूल सल्लल्लाहु उनके एतबार से जो भी सारी चीज़ें हैं वो दीन के लिए क्या कर रहे थे और उनके साथ क्या हो रहा था, ये चीज़ें इंसान को एक अलग डायरेक्शन दे रहे हैं, अलग तरीके से। अगर इसको हम सम अप करें, हम ये कह सकते हैं इन जनरल एक पेन है जी, जब एक इंसान के अंदर दर्द होता है पेन, बेशक एक दर्द होता है, एक पेन होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि एक शायर के अंदर दर्द हो। मेरा ये अपना मानना है कि ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि एक शायर के अंदर एक दर्द हो, क्योंकि ये एक फ़न है। जितना आप इसको जानते हैं, जितना आप इसको समझते हैं, उतना आप पेपर पे उतार सकते हैं। जितना आप में एक्सपीरियंस है, जितना आप समझते हैं इस फन को, उतना आप पेपर पे उतार सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हो सकती है, आपके एक लाइन से, आपके एक शेर से किसी के दिल तक आप पहुंच सकते हैं, किसी के दिल की बात आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक शेर लिख रहा हूँ और वो आपके दिल के हाल की अक्कासी कर रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया, जो कि यहाँ एक जो उन्होंने जुमला कहा कि
اس کے لیے ایک انسان کے پاس فن ہونا چاہیے. فن تو بالآخر بہت ضروری ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جو میرا خیال ہے وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے, وہ یہ کہ فن کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے یہ جو حساسیت ہوتی ہے اس کی ایک شکل دینی ضروری ہے. وہ تب دے پاتا ہے جب اس کے اندر وہ حساسیت موجود ہو. اور میرے خیال سے ایک شاعر جب اس دنیا میں آتا ہے انیٹ ہی وہ یہ ساری چیزیں لے کر آتا ہے. دیکھیے ایک شاعر جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک بورن شاعر آتا ہے, وہ پہلے ہی پیدا ہی شاعر ہوا ہوتا ہے. فن سیکھنا بہت ضروری ہے. فن سیکھنا بہت ضروری ہے, لیکن آج اس دور میں اگر آپ دیکھیں ہر ایک شخص شاعر ہے, ہر ایک شخص اپنے شعر کو انسٹاگرام پہ ڈال رہا ہے, واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہے, بٹ فن کے اعتبار سے سارے ایسا نہیں کر رہے. زہب اگر ہمارے پاس اور بھی وقت ہوتا میرے خیال سے ہم اس کو اچھے سے ڈسکس کر لیتے, لیکن پروگرام کو جو دورانیہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اور اس طرح سے ہمیں نوازنے کے لیے اپنی شاعری سے اور جو خوبصورت کیلیگرافی آپ کریں, تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بھی آپ ہمارے ساتھ برابر 9 بجے تک بنے رہے. اسی طرح سے ہمیں اپنی پیار و محبت سے نوازتے رہیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. فی الحال آج ہمیں اجازت دیں مجھے اور ماجد کو, اس وعدے کے ساتھ کہ کل پھر سے لے کے آئیں گے آپ ہی کا من پسند پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.